Hello everyone, welcome to Learn with Fun and let's start with the second chapter of class 7. We are slow but we will come up with the course now because we will start in April and in April we will go with one or two chapter everywhere, right? So we are already done with one chapter for all the classes, so no need. We are going with a good speed. Okay, let's start. Nutrition in animals, right? So we learned how plants and take make food, how plants get their nutrition, right? But now, how animal get nutrition? Nutrition doesn't mean some sort of food. Nutrition means how that food is utilized by the body, right? How it has been absorbed, assimilated by the body, right? So let us understand. Okay, different organisms take food in a different way. Like what we do, we use it hands to have the food, right? And take the food. Whereas when it comes up to dog or any other animal, like so they just eat with their mouth, right? When it comes about butterfly or other animal which use the feeding tube to suck, right? They suck the blood or they suck the nectar, right? So different animal have different mode of intake of the food, right? Ingestion, the very first step is called ingestion, right? Let's move forward and understand the process of digestion in humans, how food is digested in human. This is the major part which will be covered in this chapter, right? So you have to understand the digestive system, which is very important. Let's start with your mouth, right? The initial place is your mouth, where the food gets. So in your mouth, there are 32 teeth. There are set of four teeth on each jaw, two jaw. First jaw is upper jaw, second one is lower jaw. Your lower jaw is movable, whereas your upper jaw is fixed. Right? Now what happened? You have a salivary gland. Okay, your salivary gland situated here. Salivary gland secretes out saliva, right? Saliva to your mouth, right? Now this saliva get mixed with your food, whatever you eat, है ना? हम जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने के साथ हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है, राइट? फ्रॉम द salivary gland with the help of tongue. ओके किसकी मदद से? टंग की मदद से ना ये सलाइवा के साथ मिक्स होके क्या हो रहा है? स्मूथ पेस्ट बना लेता है जो इसोफेगस यानी हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक जाता है. स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड का बैग जैसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो मसल से बना हुआ है जहां खाने को चर्न किया जाता है. मसल्स में अगर आप बात करें, मतलब आप मसल्स की बात जहाँ चर्निंग की प्रोसेस हो रही है स्टमक की, आप वहाँ बात करें तो स्टमक में तीन मेजर चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी. तीन मेजर पार्ट है. पहली चीज तो स्टमक की जो आउटर लाइनिंग है वहां पे आपको मिलेगा म्यूकस. म्यूकस क्यों है? स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? HCl से. नाउ HCl इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो रिलीज होता है स्टमक में. क्यों होता है? ताकि खाने को एसिडिक बनाया जाए और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन को फास्ट किया जाए. पहले चीज. और दूसरी, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल एंजाइम्स आ गए हो तो उन्हें किल करने के लिए. इसके बाद इसमें ऐड होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो इंक्रीज करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को. किसके कारण ऐड होते हैं ये? लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से. नाउ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टमक में हो जाता है. इसके बाद जो खाना है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी खाना कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में जिससे हम उसे एब्जॉर्ब कर पाए स्टमक में. स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ. वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से स्टमक में से जो खाना आया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास होता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिन्हें हम बोलते हैं विली. क्या कहते हैं? विली. अब इस विली के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं. ये ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नाउ व्हाट हैपन टू द वेस्टेज फूड? जो खाने का बाकी हिस्सा बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहां उसमें से पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. फिर जाकर वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है. वंस आवर रेक्टम इज फुल we discarded or we excrete out from the body with the help of anus. हम अपनी बॉडी से उस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं एनस की मदद से. तो ये सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है. आगे देखते हैं टीथ के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. सो इंसीजर्स हमेशा कैंची से याद रखना, जिनसे खाने को काटा जाए. कैंची से क्या करते? काटते. 4 teeth in the upper jaw, 4 in the lower, total 8 incisors, right? Two canines here, two canines on the bottom, four canines. Canine you generally open with that teeth. कैप, जब भी आपको बॉटल का कैप खोलना होता है कैनाइन से करते. अखरोट फोड़नी हो, मूंगफली का दाना फोड़ना हो, या फिर आपको पिस्ता खोलना हो, आप उन्हीं दांतों की मदद लेते. कैनाइन. कैनाइन. इसके अलावा मोलर्स और प्री मोलर्स. ना प्री मोलर कितने होते हैं? 4 on each jaw, so 8, and molar
6 on each jaw, so total 12. ओके, सो मोलर एंड प्रीमोलर जो है उसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए, जैसे मोटर पेस्टल होता है ना खलबत्ता, बिल्कुल वैसे इसको पेस्ट बनाने के लिए खाने का काम करते हैं। सो ये है हमारे टीथ का स्ट्रक्चर। अब हमारी टंग के बारे में जान लेते हैं, पर इसके पहले दांत को समझ लेते हैं। दांत का जो अंदर का हिस्सा होता है उसे समझते हैं। दांत के ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इसके बाद दांत का वो हिस्सा जो गम में है यानी मसूड़ों में है उसे बोलते हैं रूट। जो बाहर है वो क्राउन, और जो बाउंड्री पर है दोनों की, मसूड़े की और हमारे माउथ की, दैट इज कॉल्ड नेक। सो बोलते हैं नेक। ठीक है, इसके इनेमल के अंदर हमारा एक बोनी स्ट्रक्चर है, राइट? यू नीड टू कीप इन माइंड, एक बोन स्ट्रक्चर है, राइट? सो दिस इज अबाउट टूथ। एक टूथ का, एक दांत का स्ट्रक्चर समझना चाहे तो वो ऐसा होता है। अब टंग की बात करें तो डिफरेंट रीजन पे हमारे टंग पर डिफरेंट टेस्ट आता है। अगर आप स्टार्टिंग की पोर्शन की बात करें तो स्वीट, देन सॉल्टी, ओके, फिर उसके बाद वाले पोर्शन में सॉल्टी, श्योर, और पीछे की तरफ फीका, बीटर टेस्ट आता है। ठीक है, फूड पाइप हम समझ चुके हैं कि उसके थ्रू पास आउट होता है, स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस होती है जहाँ जूसेस वगैरह सेक्रेट आउट होते हैं। फिर भी हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ रिमेनिंग चीजें कलेक्ट हो जाती है, वाटर वगैरह कुछ है, और फिर एक्सक्रीट आउट होता है। अब हम देखते हैं घास खाने वाले एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट्स। इनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है और फिर हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं। अब घास जो होती है वो सेलुलोज में रिच होती है। अब सेलुलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? शुगर, स्टार्च और सेलुलोज, राइट? सेलुलोज में ग्रास को हम रिच कहते हैं। तो ग्रास जो होती है उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उसके लिए एक स्पेशल हम बोले सिस्टम का पार्ट होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का कैकम, जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। तो घास खाने वाले एनिमल क्या करते हैं कि फूड को आधा च्यू करके, पार्शियली डाइजेस्ट करके ले जाते हैं और फिर उसे वापस मुंह में लाके प्रॉपर डाइजेशन को कवर करते हैं। तो जब वो वापस मुंह में लाते हैं तो वो जो खाना है जो हाफ पार्शियली उन्होंने च्यू किया है, दैट इज कॉल्ड कर्ड, उसको डाइजेस्ट करते हैं और इन्हें कहा जाता है रुमिनेंट्स। ठीक है, और इनकी प्रोसेस को कहते हैं रुमिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड में रहता है, जिसका कोई शेप वेप फिक्स नहीं होता। ये क्या करता है? अपना शेप बढ़ा लेता है, घटा लेता है, बना लेता है जैसा बनाना चाहे। तो अगर इसके 2 पार्ट्स है इस तरीके के, इसका फॉल्स पार्ट, इसको अगर हम एक्सटेंड करें फॉल्स फीट, तो धीरे धीरे ये एक्सटेंड करके क्या करता है, एक जैसे कोई खाने की चीज है, सपोज करिए कोई खाने की चीज है, सपोज हियर यू फाइंड देयर इज अ फूड पार्टिकल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये दोनों को इंक्रीज करके यहाँ पे एक होल बना लेगा। उस होल को क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। फिर उसे फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देगा वेस्ट को, क्योंकि इसकी एनएस नहीं होती है। तो ये रही प्रोसेस डाइजेशन की, जो हमें अमीबा में पढ़ी थी, रुमिनेंट्स और ह्यूमंस में पढ़ी थी। आई होप न्यूट्रिशन एंड एनिमल आपको क्लियर होगा। प्लीज रीच आउट टू मी in case of any query. Thank you so much.